the border between Bangladesh and India. Border town Petrapol. A new border, new forms to fill out. There are few countries in the world with as much paperwork as in India. Date of birth, country of birth, father's name, mother's name, occupation, destination, the usual border ceremony. Crossing this border by train hasn't been possible for the last 40 years. A war meant the end of an international railway connection. Now it's 40 kilometers by car to the first station, Bangaon. Right from the start, I feel here the energy of a people who seem to be constantly on the move. 5 billion passengers a year on a railway network of over 60,000 kilometers. Trains are essential here because there are no motorways and only a minority of the people can afford to fly. I'm on my way to Kolkata, the former Calcutta. It will take me 3 hours to reach the city that was for more than 200 years the capital of what used to be called British India. India is a land of enormous contrasts. Great poverty side by side with breathtaking wealth. Religious harmony side by side with religious conflicts. Self-confidence side by side with frustration. The modern temples of computer technology side by side with holy cows. A subcontinent with more than 1 billion people, all on their way to the future. Incredible India. 30 years ago, India was at a standstill. The pervading poverty seemed to be everlasting. Now, unbelievable change is the key word. Every year, Indian universities bring some 200,000 experienced academics in the world market. Medical specialists, IT engineers, architects. Indian universities rank among the best in the world. The Indians are well aware of this. Everywhere you find the self-confidence and the belief that India will make it. Here in India too, I'm looking for people and their stories. Ordinary travelers, train personnel. The train is an ideal meeting place. I ask everybody about their triumphs and disappointments. How do you cope with an era in which the world seems to be getting ever smaller? Is that a threat or, on the contrary, an opportunity? हम लोग जब छोटे थे उस समय पे इतना कोई एजुकेशन का कि ये इतना महत्व नहीं था उस टाइम पे। आज इस वक्त के अंदर हम देखते हैं तो एजुकेशन बहुत होना ज़रूरी है। छोटे बच्चे को पहला ही काम माँ बाप को वही करना चाहिए कि उसको एजुकेशन दो, जिस वजह से उसको हर चीज़ का रास्ता मिले। अगर वो एजुकेशन नहीं होगा तो वो रास्ता भी कम नहीं करेगा। इसी ढंग से अपन आगे जाते जाएंगे। जैसे जैसे ट्रेन जैसे जा रही है, आप कह रहे हो उस पर ही अपन आके खड़े रह जाए। जैसे कि ये ट्रेन चल रही है, पहले के ज़माने में छोटे इंजन थे, अभी उसके बाद बड़े इंजन आए, उसके बाद कोलसे के इंजन थे,
उससे के बाद में डीजल आया है, डीजल के बाद में ये इलेक्ट्रिक आ गई है, तो जैसे जैसे स्पीड भी बढ़ती गई उसकी, बढ़ती गई तो जर्नी भी शॉर्ट होती गई आदमी की, और पब्लिक भी खुश हो गई। अच्छी हाई स्पीड से गाड़ियाँ चलती है, पब्लिक में बहुत खुश है, और डे बाय डे अभी आगे आने की कोशिश कर ही रहे हैं कि अच्छे में अच्छी स्पीड पिकअप करें। जी, मेरे ग्रैंडफादर उन सब के टाइम उतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे, और उस टाइम इंडिया फाइनेंशियली भी इतना अच्छे पोजीशन में नहीं था, तो वहाँ मोस्टली इंडिया उस टाइम एग्रीकल्चर कंट्री था, तो इसलिए मोस्टली फार्मर्स थे। पर अब इंडिया प्योरली एक एग्रीकल्चरल कंट्री नहीं रहा है, अब इंडिया एक सुपर पावर है वर्ल्ड का, जो मतलब हर फील्ड में प्रोपेल कर आगे जा रहा है। इंडिया इज़ ऑलरेडी द IT सुपर पावर इन द वर्ल्ड, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो ये कहना कि वेस्ट में ही सब वेस्ट सुपर पावर है तो गलत है। इंडिया ऑलरेडी IT सुपर पावर है। वेस्ट में भी जो पूरा वर्क फोर्स है मोस्टली इंडियंस हैं, जो वहाँ IT प्रोफेशनल्स है USA में, कनाडा में मोस्टली इंडियंस हैं। तो इंडियंस को इसलिए वहाँ जाते हैं क्योंकि उनके पास इंडिया में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पर अब इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स यहीं रह सकते हैं। कट-थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तो आजकल अगर आपको सर्वाइव करना है तो अभी से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तो इसके लिए आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको अपना लेवल इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको कुछ स्टैंडर्ड रखने पड़ेंगे। तो इसलिए ये मेरे लिए एक मोटिवेशन था, इंस्पिरेशन थे, मेरे फादर खुद एक मेरे लिए इंस्पिरेशन थे। तो अगर आप पीछे रह जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद है, इसलिए आपको हमेशा अपने को इम्प्रूव करना ही रहे। आप कभी मतलब स्टिल नहीं बैठ सकते, स्टैंड स्टिल, आपको हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करना ही रहना पड़ेगा, आपको हमेशा टॉप के लिए सोचना पड़ेगा। आपको आइसक्रीम के जैसे बोलते हैं टॉप लेयर वो बनना पड़ेगा, आप मिडल का नहीं सोचते, मीडियोक्रिटी की कोई स्कोप नहीं है। मेरा सपना है कि मेरा किसी बहुत सॉफ्टवेयर जाइंट पे मेरा प्लेसमेंट हो, जैसे IBM, माइक्रोसॉफ्ट, इसी का सपना लेके मैं अभी से जी रहा हूँ। मैं इन्हीं सॉफ्टवेयर कंपनीज में जाना चाहता हूँ ताकि अपने पापा का नाम रोशन कर सकूँ। इसमें मतलब थोड़े चेंजेस ज़रूर होंगे, वो टाइम के साथ होते ही है, इंटरमिंगलिंग होती है बहुत सारे कल्चर्स के मतलब मिलने से कुछ चेंजेस ज़रूर होते हैं, कल्चरल चेंजेस, पर इतनी नहीं है कि हमारी बुनियाद को हिला सके। अभी भी हम सब भगवान में विश्वास करते हैं, सभी भारतीय, देखिए सभी भारतीय रिलीजियस तो ज़रूर होते हैं, हमारा धर्म हिंदू है और सब उसे जी जान से मानता है। इंडियन टाइप ऑफ मॉडर्नाइजेशन है, देखिए अपने इकोनॉमी को इम्प्रूव करते हुए अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर को मेंटेन करना, यही इंडियन मॉडर्नाइजेशन की एक्चुअल डेफिनेशन है। हम एज ए कंट्री डेवलप्ड कंट्री कहलाना चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन इन सबको मेंटेन रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वेस्ट के हमारा कल्चर भी वेस्ट की तरह मिल के उससे मतलब थोड़ा इफेक्ट हो। हम चाहते हैं कि हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन सब मेंटेन रहे, एट द सेम टाइम वी वांट टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। अजकल की सोसाइटी मतलब कि मतलब कुड़ी नूं स्टार्टिंग तो ही एक अपने माइंड च रखना चाहिए कि मैं किसी से डिपेंड नहीं होना, मैं अपना सैल्फ डिपेंडेंट बनना है, मैं अच्छा कोई जॉब करनी है। मतलब कई कुड़ियाँ मतलब ऐसे सोच लेंदियां ने कोई नहीं घर की रोटी बनानी है, मतलब वो नहीं सोचना चाहिए। शुरू तो ही अपना एक एम बना के रखो कि असी कल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि असी वैल सैटल्ड फैमिली च चले जावांगे अगे। अगर वैल सैटल्ड फैमिली चले भी गए तो की पता उत्थे जाके की मतलब की मिस हैपनिंग हो सकती है। तो मतलब शुरू तो अपना माइंड प्रिपेयर करना चाहिए, प्रिपेयर करके रखना चाहिए कि असी कल नूं मतलब की करना है तो असी की बनना है, असी अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, असी मतलब किसी पर डिपेंड नहीं रहना। भगवान ने जब हमें एक जैसा बनाया, हमारे वही 2 हाथ 2 पैर जैसे लड़कों के हैं, तो फिर क्या वो फर्स्ट और क्या हम सेकंड, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों इक्वल है। मैं तो यही कह रही हूँ। जो मतलब जैसे जेंट्स जाते हैं बाहर कमाते हैं, तो लेडीज़ भी बाहर जाके कमा रही हैं, अगर वो घर में आके काम करते हैं तो जेंट्स को भी उनकी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। तो इक्वल ही होना चाहिए सब कुछ, ऐसे नहीं कि बैठे रहे मेरे लिए यहीं लेके आओ, यहीं से उठा के लेके जाओ। इक्वलिटी होनी चाहिए, दोनों को इक्वल पार्स होनी चाहिए अपनी अपनी, बस ये ना हो वही जो मैं बताना चाह रही हूँ, आप समझ ही गए हैं। हस्बैंड और वाइफ मतलब सेम पोजीशन होनी चाहिए उन्होंने लाइफ ਉਹਦੇ 'ਚ फैमिली 'ਚ। और मैनू लगता कि हुण हौली हौली मिल जाएगी फर्स्ट पोजीशन भी, कुछ हद तक आ चुकी है और हौली हौली ये भी हो जाएगा जिवें मतलब फॉरेन कंट्रीज़ है वे। आई थिंक सो, मैं कभी गई तो नहीं फॉरेन च, पर मैनू लगता कि उत्थे फर्स्ट पोजीशन मिली हुई है वूमेंस नू, इत्थे हजे नहीं है पर हौली हौली वो भी आ रही है।
कुछ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਓਕਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। I reached the outskirts of Calcutta. I had just turned 17, hadn't finished high school yet, but was fascinated by the Far East, and with a rucksack and a few $100s, I had set out for mysterious India. Just like today, I loved all those languages, customs, music, but mostly I loved being on the road. Distances were never a problem, and railway timetables were my favorite and compulsory literature. Calcutta, 13 million inhabitants, over 1 billion in India. And for the first time in history, there is a potential development for everybody. Poverty that can be eradicated. Till recently that was a dream, but India has been among the fastest growing economies in the world for years now. New year, and I feel the energy that everybody is thinking of a whole new era. India is indeed on the way to becoming a world power. Estimates of when India will match Europe and America vary in 15, 20, but certainly in 25 years. For Indians, it is a fact that the 21st century is going to be their century. इंडिया का सवाल है, जहाँ वो बड़ों की इज्जत करते हैं, वो चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ में अपनी पुरानी रीति रिवाज, पुराने कल्चर को एज वेल इज्जत करते हैं, उसको साथ में लेकर अपने आगे चलते हैं। तो इसके साथ इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है कि वो लोग अपनी पुरानी रीति रिवाज को भी नहीं भूल रहे हैं और आगे जो चेंजेस आ रहे हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो जानते हैं कि उनको क्या करना है, सब कुछ चीज़ों को साथ लेकर चलते हुए। और कई लोग होते हैं जो इंडिया में मतलब ज़्यादातर जो पॉपुलेशन यही होगी जो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड ये डिसीजंस छोड़ते हैं कि उनके लाइफ पार्टनर्स वो अपने हिसाब से चूज़ करें, क्योंकि दे आर मच मोर एक्सपीरियंस दैन देयर चिल्ड्रन। मैं जहाँ तक शादी के लिए सोचती हूँ तो मेरे लिए एक अरेंज मैरिज मैं समझती हूँ कि मैं अगर करूँगी तो शायद एक अरेंज मैरिज, लेकिन मैं लव मैरिज में कोई बुराई नहीं समझती और ना ही मुझे लगता कि अगर कल को मैंने लव मैरिज की तो मेरे पेरेंट्स मुझे रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि नहीं लव मैरिज नहीं करनी है, अरेंज मैरिज ही करनी है। पर दोनों में एक चीज़ है कि बड़ों की ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए एक बच्चे को, या चाहे वो कितना भी समझदार हो, आपको अपने बड़ों के एक्सपीरियंसेस को ज़रूर ध्यान में रख कर चलना पड़ेगा कि उनके एक्सपीरियंस आपसे बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने शायद ज़्यादा दुनिया देखी है तो उनको ज़्यादा पता है। एक्साइटेड मोमेंट्स अभी मैं आपको ये भी बता देती हूँ, मैं खुद शादी में मेरे मामा की शादी में जा रही हूँ। मेरी मॉम ने मुझे बोला है वहाँ पे अगर कोई लड़का पसंद आ गया तो मैं तुम्हारा रिश्ता कर दूँगी। मैंने कहा ठीक है मामा, आपको जैसा अच्छा लगे करो। मेरे डैड यहाँ नहीं है, मेरे डैड अब्रॉड में काम करते हैं, कुवैत में काम करते हैं, वो यहाँ नहीं रहते। तो अभी जैसा वो सोचेंगी उसके हिसाब से वो भी ठीक है। अगर मुझे कोई पसंद है मैं ज़रूर आके बताऊँगी, है ठीक ठाक तो मैं ज़रूर अपने माँ बाप को बताऊँगी और उनके ही मन वो हाँ कहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है करने के लिए। अदरवाइज़ मैं चाहूँगी कि जहाँ पेरेंट्स चाहें वो भी मुझे आके बताएंगे ऐसा लड़का ऐसा है, मुझे पसंद है तो मैं ज़रूर करूँगी। तो आई वुड रादर प्रेफर अ ट्रेडिशनल मैरिज। मेरे हिसाब से अच्छा लड़का और ट्रेडिशनल मैरिज ये एक बहुत ज़्यादा परसेंटेज ले लेता है लाइफ में, और लव मैरिज का परसेंटेज तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है।
ये आजकल का प्यार है, आज रहेगा, कल एक्साइटमेंट रहेगी, परसों रहेगा, पर जब आपके ऊपर पूरी लाइफ का बर्डन आता है तब आपको रियलाइज़ होता है कि क्या है। मेरे हिसाब से तो ट्रेडिशनल मैरिज ही बेस्ट है, और लड़का भी उसमें कंसिडर तो हो ही जाता है। आपके माँ बाप हैं, इतने सालों से आपका उठा रहे हैं, आपको पाल रहे हैं, उनको पता है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो अच्छा ही करेंगे आपके। अगर आपको आज लड़के के साथ शादी करने के बाद कोई प्रॉब्लम है, आप जाके अपने माँ बाप को बोल सकते हैं मुझे ये तकलीफ़ हुई है, मुझे आपने ये ढूंढा मेरे लिए, आप कुछ भी आपको दिक्कत है आप जाके बोल सकते हैं। आप लव मैरिज कर लें, आपको आज कोई प्रॉब्लम है, कल वो ठीक है आपको कमा रहा था, 4 दिन के बाद उसको पैसे की प्रॉब्लम आ जाए, आप माँ बाप को नहीं कह सकते। आप माँ बाप तो बनेंगे तुम्हारी पसंद से किया है, तुम मुक्त हो। मेरे हिसाब से अरेंज मैरिज ही बेटर है। आगे बहुत कुछ है उसके अलावा, तो मैं बहुत प्रैक्टिकल हिसाब से सोचती हूँ, पॉजिटिव साइड से। आई कांट जस्ट गो अवे विद द स्ट्रीम, पानी जा रहा है बहती जाऊँ मैं उसके साथ, मैं वैसे नहीं हूँ। मम्मी बीए है और मैं फादर सिविल इंजीनियर है। मेरे मम्मी डैडी तो मैंने पहले से ही ना बोलते थे कि लव मैरिज नहीं करने का, बिकॉज कि पहले से ऐसा सुनने में आते हैं कि लड़के लोग बाहर जाते हैं, वो लोग ज़्यादा घर से व्यसन में रहते हैं, फिर वो लड़की सुखी नहीं रहती है, उनके वजह से नहीं ऐसा करना नहीं चाहिए, कोई मिसयूज़ करते हैं, इसलिए वो पहले से ही ना करते थे कि नहीं करने का, नहीं ऐसा करने का। मेरे ब्रदर भी ना बोलते हैं कि नहीं करने का, ऐसा कोई अब तुझे मिसयूज़ न करे, कि तेरा यूज़ न ले, कोई जो संस्कार दिया है वो बरकरार रहे, आगे बढ़ता रहे। अपने धर्म से तू जाएगी तो तू जो बचपन से तुझे सिखाया वो करने को होएगा, तो परेशान नहीं होएगी ससुराल में जाकर। फिर भी भगवान को मानते हैं ना, पढ़े लिखे हैं फिर भी पहले भगवान, बाद में जो भी है वो है, पहले भगवान को मानने का जो भी है ऐसा। तो मैं तो ऐसा सोचूं लव मैरिज करे तो कोई बात नहीं, पर पूरा देखभाल करके करना चाहिए कि बाद में पीछे से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पीछे से पछताना नहीं होने का। तो क्या लव मैरिज करते पहले अच्छा दिखाते हैं, बाद में वो पीने वाला निकलता है, काका दूसरे के साथ होता है, तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। इसलिए माँ बाप ना बोलते हैं, माँ बाप के इसलिए ना बोलते हैं, शादी नाती में करते हैं तो वो पूरा देखा हुआ रहता है। अभी अपनी जाति में करते हैं तो अपनी जाति वाली के साथ तो हम लोग पूरा जानते हैं कि हमारी कास्ट में ये होता है, वो रिवाज है, हम लोग ऐसे रहते हैं। बाद में क्या थोड़ा पैसा का भी अंदर आ जाता है। अभी के इसमें लड़की कोई माँ बाप ने ना लड़के के माँ बाप ने भी ना बोल दिया कि नहीं बाबा तू कैसी लड़की है, क्या है, मुझे क्या पता, तू जाने, तेरा घर जाने, करके छोड़ दिया। और बाद में पछताए, फिर वो झगड़ा में आता है, फिर वो बाहर चले जाते हैं, फिर वो हमें वापस मारकूट में हो, या तो फिर आत्महत्या करो या तो मर जाओ, छोड़ दो, दूसरी शादी करो। फिर माँ बाप भी नहीं इधर के नहीं उधर के, ऐसा हो जाता है। ऐसा भी नहीं, 50% यस भी है, 50% नो भी है, दोनों है। बस अपना कि माँ बाप ने देखना चाहिए कि अच्छा फैमिली हो, अच्छा उनका संस्कारिक हो, जहाँ पे अपने को मान सम्मान के साथ रहने को मिलता है, पूरी तरह साथ में बैठने का, साथ में उठने का रखना चाहिए, बस हो गया, उसमें ही पूरा आ जाता है। ऐसे ज़माने के हिसाब से हवा बदलती है तो वो हिसाब से बदलना भी चाहिए, लेकिन बदलने में ये नहीं होना चाहिए कि जो अपनी संस्कृति है, अपना संस्कार है, अपना जो समझन शक्ति है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अपने जीवन में या अपने दूसरे जो वडील है उसको भी नुकसान करे और खुद के बच्चे को भी खराब असर पड़े और वो भी गलत रास्ते से चले, वो नहीं होना चाहिए। अच्छे रास्ते से चलता है, अच्छे ढंग से चलते हैं तो चीज़ अच्छी है।
मेरा जो हैगा रेंज मैरिज हुई सी, मैं लव मैरिज नहीं कराई, मतलब क्योंकि मेरा है नहीं सी इदां, मैं सिर्फ ओनली रेंज मैरिज घरदिਆਂ ਨੇ। तो ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਲੜਕੀ ਕਹੂਗੀ ਮੈਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਲੜਕਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜੈਸ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ। ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਮਤਲਬ 89 ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ 2 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਗੁੜੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ 9th ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 7th ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ 13 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ 13 ਸਾਲ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਆ ਮਾੜਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਆ ਚੰਗਾ ਆ ਮਾੜਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਜਾਣ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਚਲੋ ਮਾਡਰਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਛੁਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਾ ਦੇਣ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਟਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾਲ ਕਟਾਤੇ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫਾਦਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵਾਲ ਕਟਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬਾਉਂਡ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਿਕਨੈਸ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੈਸੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। I'm getting to the end of the first part of my journey through an India that is changing in lightning speed. Everywhere I witness trust in the future of a country that is on the way to becoming a world power. Stories that speak of self-confidence and pride. Stories about India as a world power, while preserving its traditions, culture and religion. Modernizing without becoming a copy of the West.